Hello students, today we are going to discuss some questions from miscellaneous exercise 3, 15 to 20. So first we are going to consider question number 15 from your chapter integration. So here let's start. Question 15 is integration of 1 upon 1 upon sin x plus sin 2x. So this is very easy. We are going to write the solution. I equals to integration of 1 upon sin x plus sin 2x dx. Here we are going to solve 1 upon sin x as it is sin 2x. Now we have formula for sin 2x, that is 2 sin x into cos x. So here I am going to write 2 sin x into cos x dx. Now next step, you can see in the denominator sin x is common, so remaining term you can see 1 plus 2 cos x, because sin x is taken common. यहाँ पे sin x है, यहाँ पे sin x है, we have taken sin x common. Now let's adjust sin x, multiplying numerator denominator by sin x. तो यहाँ पे sin x से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे sin x से मल्टीप्लाई किया तो sin square x आ ही जाएगा, तो 1 plus 2 cos x dx. Now here ये dx as it is, again I am going to write sin x in numerator as it is, sin square can be written as 1 minus cos square x according to identity. Here 1 plus 2 cos x as it is. Now for solving this further, we are going to put cos x equals to t. Put cos x equals to t. So after taking cos x equals to t and differentiating, we will get sin x dx dt. So here differentiating, we will get differentiating cos x are derivative, yes, minus sin x. These are derivative dt by dx. Now I want sin x dx. So here I am going to write minus sin x equal to dt upon dx. I want sin x dx, तो dx डिवाइड इकडे लेफ्ट साइडला मल्टिप्लाई, और ये माइनस जो है ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो dx ये लेफ्ट में. तो देयरफॉर इंटीग्रेशन बिकम्स माइनस dt को डिवाइडेड बाय 1 minus t square 1 plus 2t, because we have taken cos x equals to t. Now taking minus outside because it is constant, here we can write minus 1 also. 1 minus t square, this can be written as 1 plus t, 1 minus t, 1 plus 2t as it is. So we are going to solve this by partial fraction method. Consider 1 upon 1 minus t, 1 plus t, 1 plus twice t equals to a upon first bracket plus b upon second bracket plus c upon third bracket. Further we are going to solve 1 equals to 1 minus t, 1 plus t, 1 plus twice t as it is,
Now let's solve this. Now LCM of three brackets will be multiplication of three brackets, 1 minus t, 1 plus t, तीनों का मल्टीप्लीकेशन यानी उसका एलसीएम हो जाएगा. अब 1 माइनस टी ने इसके एलसीएम को डिवाइड किया तो बचेगा 1 प्लस टी, 1 प्लस ट्वाइस टी, यानी एक को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 प्लस टी और 1 प्लस टू टी, तो क्या आएगा इंटू 1 प्लस टी, 1 प्लस ट्वाइस. अब बी से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये उसका डिनोमिनेटर छोड़ के जो बचे न्यूमरेटर बचे डिनोमिनेटर से वो आएंगे 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, ओके, प्लस सी इंटू इधर सी का जो डिनोमिनेटर वो छोड़ के बाकी के दो डिनोमिनेटर से उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय एलसीएम मेथड. ओके, नाउ लेट वी solve further. 1 minus t cancel, 1 plus t, 1 plus t cancel, 1 plus twice t, 1 plus twice t cancel. Okay, now here left terms are a in bracket 1 plus t into 1 plus twice t plus b in bracket 1 minus t into 1 plus twice t, c in bracket 1 minus t into 1 plus t. Now we are going to find the value of a, b, c. So let me call this equation 1 here. So put t equals to 1 in equation 1. तो इक्वेशन 1 implies हम क्या कर रहे हैं, एक एक ब्रैकेट को जीरो पुट करें, यानी क्या किया हमने, ए का जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस टी, इसको पहले जीरो पुट करते हैं. ओके, इट मीन्स टी इक्वल्स टू 1, तो ये वैल्यू इक्वेशन 1 में मारते हैं. तो इक्वेशन 1 implies तो इक्वेशन 1 implies जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे 1 मारना है, तो 1 इक्वल्स टू ये ए जो है इस यहाँ पे हम 1 माइनस टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये 1 प्लस 1 और ये 1 प्लस ट्वाइस इंटू 1. ओके, बाकी के जो टर्म्स है वो 0 आएंगे. तो ये 1 एज इट इज़, ए इंटू ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, बाकी 0. तो ये 1 इक्वल्स टू ए इंटू 3 टू 6. एक वैल्यू हम देख रहे हैं, एक वैल्यू क्या आ गई, यस 1/6. Therefore a equals to 1/6. This is the first value of a. Now in equation 1 again we are going to put second bracket जो था b का डिनोमिनेटर, यानी 1 plus t equals to 0, यानी t equals to -1. तो ये इक्वेशन 1 जो है वो बन जाएगा ये 1 plus t equal to 0 यानी t equal to -1. तो इक्वेशन 1 इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पे -1 पुट करेंगे. तो ये 1 एज इट इज़, अब ये a इंटू 0 आ जाएगा, ये b इंटू आप देख सकते हैं ये 2 आ जाएगा और ये -1 और ये c की वैल्यू 0. 1 इक्वल्स टू ये b इंटू -2, बाकी वैल्यू 0. तो ये माइनस ट्वाइस b, तो ये b क्या आएगा, ये -2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, b की वैल्यू क्या आ गई -2. ओके, अब लास्ट हम इक्वेशन 1 में अनदर टी की वैल्यू पुट करने वाले हैं. तो थर्ड ब्रैकेट क्या होता है, थर्ड ब्रैकेट वाज 1 प्लस ट्वाइस टी. तो पुट 1 प्लस ट्वाइस टी इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज ट्वाइस टी इक्वल्स टू -1. दिस इम्प्लाइज टी इक्वल्स टू -1/2. अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. ठीक है, इक्वेशन 1 मध्ये हे वैल्यू पुट केल्यानंतर काय 1 इक्वल्स टू ए इंटू 0 आ जाएगा, बी इंटू 0 आ जाएगा. ओके, और ये जो c है, ओके, ये c की वैल्यू c इंटू ये 3/2 आ जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा. ठीक, तो आप देख सकते हैं ये 1 इक्वल्स टू ये 0 0, ये c की वैल्यू क्या आ गई 3/4. देयरफॉर c इक्वल्स टू ये 3/4 इधर लेफ्ट साइड में 4/3 आ जाएगा. ठीक, अब a मालूम है, b मालूम है, c मालूम है, तो वी आर गोइंग टू पुट ऑल दिस वैल्यू इन इंटीग्रेशन. तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो अपना ब्रैकेट था एक a अपॉन 1 माइनस टी, b अपॉन 1 प्लस टी, c अपॉन 1 प्लस ट्वाइस टी होल डी. तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या थी 1/6, 1 माइनस टी
डी की वैल्यू क्या थी -1/2 1 + t, और सी की वैल्यू क्या थी 4/3 1 + ट्वाइस टी होल 3। अब इंटीग्रेशन को हम सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन 1 - t dt, -1/2 बाहर 1/1 + t dt प्लस 4/3 बाहर 1/1 + ट्वाइस t dt। तो इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log mod of 1 - t, इसका इंटीग्रेशन log of mod 1 + t, और इसका log mod 1 + ट्वाइस t इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t, अपॉन में कोएफिशिएंट लेना है t का। तो इसको और अच्छा लिखेंगे 1/6 log ऑफ t की वैल्यू मार दो 1 - t। तो t की वैल्यू जो है, अच्छा ये यहाँ पे लॉग लेने के बाद टी का कोएफिशिएंट ये अपॉन में ये -1 लिखना है, ठीक है। तो ये -1/6 आ जाएगा, टी की वैल्यू cos x, ये cos x जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे cos x। ये 2 आप भाग कर सकते बेकर पे 2 4 2/3 आ जाएगा। मैं यहाँ 2/3 करेक्शन कर लूँगा 2/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, यहाँ पे भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो दैट इज द फाइनल आंसर। ये माइनस से आप जो है ये अगर माइनस हटाना है तो आप ये लॉग में ये cos x -1 का चेंज कर सकते हैं। अगर माइनस रिमूव करना है तो 1 - cos x का cos x -1 आ जाएगा, ओके, जो कि आपके बुक में आंसर दिया है। तो ये था अपना फाइनल आंसर। So I think students you have got this solution. So another question we are going to discuss 19th, okay। 19th जो है वो लिखेंगे हम 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sin x प्लस सॉरी 20th क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। 15th हमने सॉल्व किया था, ओके, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 15। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इधर 16th। 16th क्वेश्चन पे आएंगे। I equals to integration of this x square x in square root of 7 plus 2 tan x minus tan square x whole dx, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम tan x को t पुट करेंगे, पुट tan x इक्वल्स टू t, बिकॉज ये सेक्स स्क्वायर dx जो है वो dt बनने वाला है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट किया तो tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x, t का डेरिवेटिव dt बाय dx, ये dx डिवाइड लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, तो हमारा जो सेक्स स्क्वायर dx है वो क्या आएगा dt। तो इंटीग्रेशन बिकम्स ये सेक्स स्क्वायर dx यानी ये मैं यहाँ पे dt लिख रहा हूँ, ये अंडर रूट क्या बनेगा 7 प्लस ट्वाइस टी माइनस टी स्क्वायर, ओके। तो इसको और हम अच्छा सॉल्व करेंगे, तो एक को हम कंसिडर करेंगे। फर्स्ट आई एम गोइंग टू कंसिडर 7 प्लस 2 ट्वाइस टी माइनस टी स्क्वायर। मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो पहले लिखूंगा टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस टी माइनस 7, ओके। अब मैं यहाँ पे थर्ड टर्म निकालूंगा, तो आई कैन फाइंड आउट द थर्ड टर्म, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टी दैट इज -2 होल स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल बचा 1, तो -1 का स्क्वायर +1। तो मैं +1 जो है वो ऐड करने वाला हूँ, टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस टी, ये +1 ये -1, ओके। तो ये ब्रैकेट में दे देता हूँ, तो क्या जाएगा ये माइनस ऑफ ये t -1 का ये होल स्क्वायर बन गया, ये -8, ओके। अब मैं माइनस अंदर लेके जाऊंगा तो ये आएगा 8 माइनस t -1 होल स्क्वायर, ओके। तो 8 को आप कैसे लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर, ओके। तो मैं लिखूंगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस t -1 होल स्क्वायर, ओके। तो हम इंटीग्रेशन पे आएंगे, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ
तो ये था 2√2 होल स्क्वायर माइनस t माइनस 1 होल स्क्वायर dt। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है अपना इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो इसका फॉर्मूला हमें मालूम है। तो ये फॉर्मूला है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, x की जगह t माइनस 1 पुट करना। तो अपना आंसर आएगा ये t माइनस 1 अपॉन ये 2√2, सॉरी x/2 है, तो ये t माइनस 1 अपॉन 2, ये अंडर रूट ऑफ, ओके, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2√2 स्क्वायर माइनस t माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस 2√2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स। तो x की जगह t है, तो t है t माइनस 1 अपॉन a है यानी 2√2 प्लस। ठीक है, इसको और अच्छा लिख सकते हैं अपन, तो लिखेंगे t माइनस 1 अपॉन 2। ओके, ये अंदर इसको ये जो है स्क्वायर रूट में जो भी है इसको हम वो पूरा एज इट इज लिखेंगे। इसको सॉल्व किया तो ये आएगा, ओके, प्लस इसको सॉल्व किया तो ये 4 आने वाला है साइन इनवर्स ऑफ ये t माइनस 1 अपॉन 2√2 प्लस। ठीक है, और जहाँ जहाँ t है वहाँ पे क्या डालना है आपको, tan x। तो t की वैल्यू हम पुट करेंगे tan x माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 2 tan x माइनस tan स्क्वायर x, तो जहाँ t है वहाँ पे tan मारना, प्लस 4 साइन इनवर्स ऑफ ये क्या आ जाएगा tan x माइनस 1 अपॉन 2√2 प्लस। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंसिडर नेक्स्ट क्वेश्चन। I equals to integration of x plus 5 whole divided by x cube plus 3x square minus x minus 3 whole dx। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर जो है x plus 5 एज इट इज़। अब वी आर गोइंग टू फैक्टराइज। तो मैं क्या करूँगा, ये एक्स क्यूब और 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये क्या बचा x plus 3, और ये एक माइनस 3 से मैं कॉमन निकालूंगा -1, तो ये बचा x plus 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी x plus 3, यहाँ पे भी x plus 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x plus 5। अब ये x plus 3 कॉमन, तो इधर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो x स्क्वायर माइनस 1 के हम फैक्टर्स गिराएंगे, ये x plus 3 एज इट इज, उसके फैक्टर्स गिरेंगे x plus 1 x minus 1। अब दिस इज अगेन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट x plus 5 अपॉन x plus 3 x plus 1 और x minus 1 इक्वल्स टू a अपॉन इतना फर्स्ट ब्रैकेट x plus 3 प्लस b अपॉन सेकंड ब्रैकेट x minus 1, उनसे भी लिया तो भी चलेगा, c अपॉन थर्ड ब्रैकेट ये x plus 1। ठीक, तो देयरफॉर ये x plus 5 अपॉन ये तीन ब्रैकेट्स तो एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं। अभी जो डिनोमिनेटर में तीन ब्रैकेट से इसका एलसीएम यानी वो मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो a इंटू उसका डिनोमिनेटर छोड़ के बाकी के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, b का डिनोमिनेटर छोड़ के बाकी के जो ब्रैकेट्स है उससे मल्टीप्लाई, और c का मल्टीप्लिकेशन जो है उसका डिनोमिनेटर छोड़ के बाकी के जो है उससे मल्टीप्लाई। अब आप देख सकते हैं ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे x plus 3 था, यहाँ पे x plus 1 था, और यहाँ पे x minus 1। अब कौन सा भी लिखा तो भी चलेगा आगे पीछे। तो ये जो है ये तीनों ब्रैकेट इन तीनों ब्रैकेट से कैंसिल, तो बचे कुछ जो टर्म्स है वो x plus 5 इक्वल्स टू a इंटू x minus 1 x plus 1 b इंटू x plus 3 इंटू x plus 1 प्लस a इंटू x plus 3 x minus 1। ओके, अब ये ए बी सी की वैल्यू हमें निकालना है, तो उसके लिए हम एक एक ब्रैकेट को जीरो पुट करेंगे।
सबसे पहले हम x+3 को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x² -3। अब इक्वेशन ये 1 में हम पुट करते हैं तो ये आ जाएगा -3 + 5 = a इंटू ये -3 - 1 और ये -3 + 1। ठीक है, अब ये बाकी के ब्रैकेट की वैल्यू 0 आने वाली है क्योंकि वहाँ पे x+2 ऑलरेडी बैठा हुआ। तो ये -3 + 5 = 2, ये -4 और ये -2 बाकी 0। तो ये हाँ आप देख सकते हैं ये 4 × 8, ओके 8 मल्टीप्लाई इधर लेफ्ट साइड में डिवाइड, तो 2/8 यानी क्या जाएगा ये 1/4। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या आ गई 1/4। ए की वैल्यू तो निकाली, अब हम बी की वैल्यू निकालने के लिए पुट x - 1 = 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। ओके, अब इसको इक्वेशन 1 में मारते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 5। ओके, बाकी ए की वैल्यू 0 आएगी, बी की वैल्यू में ये 1 + 3 और ये 1 + 1 और सी की वैल्यू ये 0 आएगी। ठीक है, तो ये 6, ये बी की वैल्यू 3 + 1 ये 4 और ये 2। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये बी ये 4 × 2 = 8 ये 6। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यस, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 6/8 यानी 2 3 = 2 4 यानी बी की वैल्यू क्या आ गई 3/4। इस तरह बी की वैल्यू मिल गई। अब सी की वैल्यू के लिए हम ट्राई करेंगे। अब हम पुट करेंगे पुट x + 1 = 0 यानी x की वैल्यू क्या आएगी -1। अब इक्वेशन 1 में मारते हैं ये वैल्यू तो वो आएगा -1 + 5 = अब a की वैल्यू ये 0 बनेगी, ये b की वैल्यू 0 बनेगी। ओके, अब c की वैल्यू हम देखेंगे क्या आएगा यस -1 + 3 अरे -1 -1 -1 + 5 = 4, ये 0 है, ये c ये 2 आएगा और ये -2 आएगा। तो ये c की वैल्यू -c × -4 ये 4, ये 4 -4 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो ये 4/-4 दैट इज -1। तो c की वैल्यू आ गई -1। तो हम स्टूडेंट्स हमारे पास अभी a b c तीनों की वैल्यूज हैं तो हम ये पुट करेंगे अपने इंडिकेशन में। देयरफॉर i = इंडिकेशन ऑफ, तो क्या होगा a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट था x+3, b अपॉन दूसरा ब्रैकेट था x - 1, ये c अपॉन थर्ड ब्रैकेट था x+1। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या था a यानी 1/4, b यानी 3/4, c यानी -1/x+1। अब इसको इंडिकेशन से फिट करेंगे और हाथ हाथ कांस्टेंट को भी बाहर निकालेंगे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बस ये मेथड जो है पार्शियल फ्रैक्शन की आपको मालूम है। अब ये dx याद से लिखना नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। चलो तो ये क्या जाएगा इधर ये 1/4, ये log ऑफ mod ऑफ x+3, ये +3/4, ये log ऑफ mod ऑफ x - 1, ये सॉरी ये माइनस इधर -1 है तो मैं यहाँ पे -1 लिख रहा हूँ, ये log ऑफ mod ऑफ x+1 प्लस, तो इसको आप थोड़ा तोड़ मरोड़ भी सकते हैं। 1/4 log ऑफ mod ऑफ x+3 में यहाँ पे एज इट इज लिख रहा हूँ, ये अपॉन 4 जो है। अब मैं क्या करूँगा ये 3 जो है इसको पावर में लेके जाऊँगा, ठीक है। ये माइनस लॉग जो है ये एज इट इज, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1/4 एडजस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये 1/4 से मल्टीप्लाई और 4 से मल्टीप्लाई 1/4 से डिवाइड, तो 4 से जो मल्टीप्लाई होगा वो पावर में जाके बैठेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1/4 कॉमन, ये लॉग का रूल हमें यूज़ करना है यहाँ पे, लॉग ऑफ ए बी यानी लॉग ए इंटू बी यानी ये x+3 इंटू x-1 का क्यूब और ये माइनस था यानी अपॉन में आएगा, ओके। तो दिस वाज योर फाइनल आंसर। तो सच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स, तो आप प्रैक्टिस कीजिए
Next question we are going to discuss 1 upon x into x raised to 5 plus 1 dx. ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इजी, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो ये 1 जो है, ये 1 की जगह मैं लिखने वाला हूँ एक्स रेज टू 5 प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू 5। ओके, एक्स इंटू एक्स रेज टू 5 प्लस 1, ये एज इट इज, ये डी एज इट इज। ओके, अब ब्रैकेट सेपरेट करते हैं अपन। ये एक्स रेज टू 5 प्लस 1 से डिनोमिनेटर सेपरेट। ओके, माइनस ये एक्स रेज टू 5 अपॉन एक्स इंटू एक्स रेज टू 5 प्लस 1, इसको ये सेपरेट होल डी एक्स। तो आप देख सकते हैं कोई कैंसिल होने वाला है। यस, एक्स रेज टू 5 एक्स रेज टू 5 कैंसिल। तो अंदर क्या बचा, ये 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स रेज टू 5 अपॉन, अच्छा ये एक्स कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे पावर 4 बचेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ी सेटिंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स रेज टू 4 अपॉन एक्स रेज टू 5 प्लस 1 होल डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 4 अपॉन एक्स रेज टू 5 प्लस 1 डी एक्स। अब अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन तो मालूम है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस, अब इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, अब ये एक्स रेज टू 4 डी एक्स एडजस्टमेंट कब होगा, जब एक्स रेज टू 5 का टी पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव जो है 5 एक्स रेज टू 4 आएगा, तो मैं आई एम गोइंग टू एडजस्ट 5। ठीक है, तो इसको मैं ये जो है 1/5 इसको I1 कंसिडर करता हूँ और कॉन्स्टेंट C1। तो I1 के लिए मैं क्या करूँगा, ये 5 एक्स रेज टू 4 अपॉन एक्स रेज टू 5 प्लस 1, ये डी एक्स मैं अलग से सॉल्व करूँगा। तो पुट एक्स रेज टू 5 प्लस 1 टी। ओके, तो ये क्या जाएगा, इसका डेरिवेटिव 5 एक्स रेज टू 4, ये 1 का डेरिवेटिव 0, टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स, ये डी एक्स डिवाइड लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई। ओके, आप देख सकते हैं, तो ये डेरिवेटिव बराबर एडजस्ट हुआ। तो इंटीग्रेशन आई क्या बनेगा, यस, तो आई बनेगा, I1 बनेगा ये डी टी अपॉन टी। ओके, यानी क्या जाएगा, लॉग ऑफ टी प्लस C2, यानी क्या जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी। टी क्या था अपना, एक्स रेज टू 5 प्लस 1। ठीक है, ये था अपना I1। अब ये वैल्यू हम आई में पुट करेंगे, सॉरी, तो आई में ये वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, log of mod of x as it is minus 1/5 log of mod of x raised to 5 plus 1 plus c1 plus c2। c1 plus c2 को नया कांस्टेंट बोल देंगे c। तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट भी कर लेता हूँ, यहाँ पे 1/5 एडजस्टमेंट, क्योंकि 1/5 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, c1 plus c2 को आपने c पुट किया, नया कांस्टेंट। ओके, तो ये 1/5 कांस्टेंट, 1/5 कॉमन। ठीक, तो ये 5 जो है पावर में जाके बैठेगा, माइनस लॉग ऑफ एक्स रेज टू 5 प्लस 1। अब लॉग ए माइनस लॉग बी, तो आप इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए अपॉन बी। तो ये था आपका फाइनल आंसर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू गॉट दिस सॉल्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 19th क्वेश्चन है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x अपॉन sin x इंटू cos x dx। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x अपॉन sin x cos x। हम क्या करेंगे, वो न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर्स को
कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तभी जाके ये सॉल्व होगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स से दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो अपन कॉस स्क्वायर यानी सेक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में, इधर ये एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन अपन कॉस क्या बन गया, tan x, ठीक, dx। अब tan x यानी क्या, व्हाट इज tan x, ये रूट tan x मैं तो यहाँ पे एज इट इज लिख रहा हूँ कि tan x यानी क्या, रूट tan x इंटू रूट tan x, ओके। एक रूट tan x कैंसिल, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन रूट tan x dx। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट करो, पुट tan x इक्वल्स टू t, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, ये सेक्स स्क्वायर एक्स टी का डेरिवेटिव dt बाय dx। तो देयरफॉर ये सेक्स स्क्वायर एक्स dx डिवाइड किया लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई ये dt, तो अपना जो है ये सेक्स स्क्वायर dx ये जो है ये एडजस्ट होगा, तो आई बनेगा dt अपॉन टी स्क्वायर, ओके। तो अपॉन टी स्क्वायर, तो रूट में है, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, रूट में tan x क्या हो जाएगा, ये अगर आप रूट में लिख रहे हैं तो यू टू राइट रूट ऑफ टी, सॉरी मैं तो करेक्शन करता हूँ, तो रूट ऑफ क्या आ जाएगा, ये टी, तो रूट ऑफ टी, इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे, क्या आ जाएगा, यस, तो ये टू रूट टी प्लस, तो ये टू रूट टी यानी कौन, tan x, and this is our final answer. So I think students, this was one of the easiest solution. अब हम आखिरी सवाल पे फोकस करेंगे, तो ये भी इजी है, बस थोड़ा सा टेक्निक ध्यान में रखना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ऑफ दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज 3। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक रेज़ टू 4x और ये कोसेक स्क्वायर x dx, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम ये सेक रेज़ टू 4 पे क्या करेंगे, ये सेक स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, ये कोसेक स्क्वायर x dx एज इट इज। अब इस सेक स्क्वायर को मैं और फॉर्मूला लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर में 1 प्लस tan स्क्वायर, तो स्क्वायर एज इट इज, ये कोसेक स्क्वायर x dx एज इट इज, ठीक। अब और हमें इसको एडजस्ट करना है, ये tan स्क्वायर को मैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर पुट करूँगा, क्योंकि कॉट का जो डेरिवेटिव है कोसेक स्क्वायर dx यानी माइनस कोसेक स्क्वायर dx, एडजस्टमेंट अपन कर सकते हैं। तो ये आपके ध्यान में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, पुट कॉट एक्स इक्वल्स टू टी, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है ना, टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। मुझे तो कोसेक स्क्वायर डी एक्स होना, ओके, माइनस नहीं होना, तो मैं क्या करूँगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड लेट में मल्टीप्लाई और ये माइनस राइट में, ओके। तो चलो अभी इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करते, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, ये माइनस बाहर कॉन्स्टेंट निकाल रखते, तो ये क्या आएगा, यस 1 अपॉन ये टी स्क्वायर डी टी, माइनस डी टी था, मैंने माइनस बाहर निकाला, ठीक है, तो ये माइनस बाहर ही रखते। अब लगे तो आप ये इसका स्क्वायर कर लो, 1 ये ट्वाइस, ओके, और ये टी रेज़ टू 4। अब ये जो है इंटीग्रेशन एक का सॉल्व करो, विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो इसलिए आराम से करना है, गड़बड़ नहीं करना, ओके। तो ये -1 एज इट इज, चलो एक एक का इंटीग्रेशन निकालते हैं, इसका टी, ओके, इसका टी रेज़ टू -1 अपॉन -1 तो मालूम है, ओके, और ये अपॉन टी रेज़ टू 4 एंड अपॉन टी रेज़ टू 4 यानी टी रेज़ टू -4 ना, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, पावर एक से बढ़ेगी और ये पावर एक से बढ़ेगी, ठीक है, प्लस, तो इसको अच्छा लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, -1 टी एज इट इज, ये -2 टी रेज़ टू -1 यानी इसको अपॉन टी लिख सकते हैं, ओके, ये -4 प्लस 1 -3 यानी -3 बाहर और ये टी रेज़ टू -3 प्लस, ठीक, तो इसको और अपन अच्छा लिखेंगे, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे क्या करना है, कॉट एक्स मारना, कॉट एक्स -2 अपॉन कॉट एक्स, ये 1/3 टी रेज़ टू -3, इसको अपॉन टी रेज़ टू 3 यानी कॉट क्यूब एक्स, ओके, प्लस,
तो दिस वाज द फाइनल आंसर ऑफ दिस फाइनल क्वेश्चन। ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स यू हैव गॉट दिस सॉल्यूशन। आपको कुछ भी डिफिकल्टी रही तो आप मुझे मेल कीजिए, कमेंट में लिख के भेजिए, मैसेज कीजिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।